Excellent team you have. क्या बात है. आशीर्वाद रखिए सर. आप हमारे सीनियर हैं. आपका आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद. तारीफ करें. अरे क्या बात है. Dr. is semi-god. I would consider you semi-god. नहीं सर, you deserve it, sir. You deserve it. छोटा सा श्रीफ आशीर्वाद रखिए सर. आप हमसे आशीर्वाद रखिए सर. सर अरे सर. Good morning everyone, ladies and gentlemen. Let me welcome you all on the interactive talk of Diabetes Redefined. Thank you so much for taking out the time to address this interaction. So let me first of all welcome our chief guest for today, that Colonel Mani Srinivas. Thank you very much for your time. Sir, join us here. Colonel Srinivas retired from Army in 1996. He joined the Army in 1963 and got his commission in 1964 as second lieutenant at the age of 19. He fought war with Pakistan in 1965 and 1971. He served in all border areas like Jammu and Kashmir, Nagaland, Manipur, NEFA, Rajasthan and Assam during his 32 years of service. During his service, he did LLB, MBA, PG Diploma in Personal Management, Software Technology and Diploma in Taxation Law. After retirement, he has served in corporate sector for 26 years. At present, he is working full-time as president of SGS IPR Consultancy in Mayur Vihar, New Delhi. So let's again welcome Colonel Mani Srinivas. Thank you, sir. Now, I would like to welcome our guest of honor, Kameshwar Chaudhary, sir. Sir, join us here, please. Mr. Kameshwar Chaudhary, IRSS retired as Controller of Stores, Indian Railways, a mechanical engineering graduate from IIT Banaras Hindu University and Master in Public Administration and Management from IIPA Government of India. Ex-President, Public Procurement Gov Group and Consultant to DPIIT, Ministry of Commerce and Industry, Government of India. A trainer and an arbitrator in public contracts, a writer on public affairs. So let's all welcome again Mr. Kameshwar Chaudhary. Now, I would like to welcome our Dr. S. Kumar. It's been long association with Dr. S. Kumar. It's been 8 years, and we have grown up in his presence till then. And rest he'll talk about the evening. It's all his day to day. We'll talk about a bit of what is diabetes and how it can be reversed. So all over to Dr. Kumar. But before that, ma'am, we'll go for the lamping ceremony and then give the mic to them if they want to talk a little bit of. A few prestigious words. Dr. S. Kumar, our guest of honor, ladies and gentlemen. It is a great honor for me
to be the chief guest of this August gathering here, and also to hear from Dr. S. Kumar all about the diabetes and how it can be cured. Now, as far as I am concerned, while I was serving with the Dharampal Satyapal group, DS group, Rajni Gadda, you must have known about it. So we had an annual medical examination. During that examination, I came to know that I am a borderline diabetic. That was almost 18 years back. I could control my diabetes. It was under control till last about 6 months. I was very happy and I was not having any problems. Last 6 months, the medicines stopped working for me. I had a very good doctor, Dr. Bhardwaj. He told me, now you have no alternative but to have insulin. I said, let me have a second opinion. I went to Kailash Hospital. There a very good doctor who was specializing in diabetes. He also told me the same thing, that medicines don't work for you, you have to go in for insulin. I again changed, went to the third doctor, Dr. Gulab Gupta, New Hospital, and he also told me the same. When I told my wife that I have to now start insulin, every night I have to take the insulin injection, she said no, you will not take, because she is a very staunch believer in Sai Baba. She says Sai Baba says that your husband doesn't require this and he will give you and tell you the way how to do without insulin. My wife started researching YouTube and various TV channels and all. That's where she came to know about Dr. S. Kumar. There was an interview where he was explaining in detail that there is no requirement of medicine and it's all a special diet therapy is there. If you follow that for 1 year, the diabetes will be completely cured. I also heard the interview of Dr. S. Kumar, and then I contacted Mr. Dua. He told me that he comes twice a month and he fixed an appointment for me. And about a month back, we came, myself and my wife. The first thing Dr. Kumar told me that you are not diabetic. It was a pleasant shock. I said, how is it possible? For the last 18 years I am told that I am diabetic and you are telling that you are not diabetic. I said, yes. And it is not that I brought test reports. There were 3 special tests which nobody conducts in India. He explained to me as to what exactly is wrong with me. He said there is a Chakravyuh and your medicines don't enter that circle. He explained to me very nicely. He says with this therapy, that therapy, we will make sure that Chakravyuh is broken. Very nicely explained. Theoretically it was sounding very nice. And then he gave me the special diet, whatever was there, which I took, and my wife very strictly made me follow that. And to my shock, when I went for the test, blood test, that is fasting and PP, which before meeting him was between 260 and 280, came down by 100. It came down to 160 and 180. I said, Dr. Khabar, I think you are a god for me.
And he is a very humble soul. He said, no, don't talk like that. So I was very happy, and my wife was very happy. She said that whatever Baba said has come true, and that's how. Then I got a call from Mr. Dua, and he said that we want you to be the chief guest of the talk which Dr. S. Kumar is doing. It was a great honor. I feel really honored to be here, to be in front of you and to listen to Dr. S. Kumar. Thank you very much. Thank you so much, sir. Myself got noticed during annual checkups. I was in railways, working very hard and very actively. And only the annual programs of the health treatment, health diagnosis, some doctors just caught me and he said that you are diagnosed with diabetes. I didn't know even about diabetes or diabetes. Thereafter, he started giving medicine to me, and without questioning him, I started taking the medicines. Although I didn't have any control over my diets or anything, because I was working alone. My family was in Delhi, I was in Patna. That time I was working very hard. When I came to Delhi, and got retired also, then I found that this problem is coming up. I went to many hospitals. In fact, I've named not named the doctors, but I've named hospitals at least. I went to Max Hospitals with one of the known relations who was expert in diabetes, and Dr. our Srinivasa says, as it is, he says that it is very difficult to cure it unless you take go for insulin. I said I will not go for insulin. Because to tell me if you have a medicine is all right, if you have insulin is the only medicine available for you, then I let you try. Then I went to 2-3 hospitals. I went to Fortis also. Retired from the ends. He was recommended by one of my friends, close friends. He took a lot of tests in the sector, a lot of exercises, and then prescribed certain medicines. The heaviest medicines we prescribed that could not control by diabetes. And then also he suggested insulin. I told him this is not the way. Let me try. I tried for some time. But I was feeling, although it was under control, but I was feeling very much overloaded with medicines. And incidentally, then I took an assignment from the Ministry of Commerce. As you must be aware of DPIIT. We have been coordinating for Make in India programs. A lot of industrialists, a lot of people from outside countries, they used to come. We found that this entire industry of medicine is so overburdened, and though it is heavily regulated, highly regulated, but still my friends are there, for Director General of CDSU, and we talk with them. Nobody is aware how this way the allopathic medicines is going on. And we talked of Eli Lilly and other three people of insulins. Only 3 companies are there in insulins. They are dictating their terms to us. And when we found every week all multinationals from US, UK and Europe, etc., including Indian multinationals, they were coming. They were gripping the entire industry in such a manner that it was difficult to get rid of these medicines. Even Prime Minister wanted Jana Sodhi to continue. He has his own keen enthusiasm to develop the affordable medicines. But I know 3 conferences organized by Prime Minister could not elicit any result because of the MCA's
his money. So then it was very disappointing for me, and then I started really believing more on non-medicinal, natural, and maybe Ayurvedic or such sort of thing. My wife one day saw Dr. Kumar on YouTube. So she told me, and she just showed me this program also. Then I thought, because she only persuaded me. We met, so I met Dr. Kumar. He had a very good talk. And then the way he explained the special type of test which he prescribed, it was very, very convincing and logical for me. I thought this sort of concept must be, whether I am right or wrong, or whether I am able to get rid of or not, but we must try to take it forward and talk to many levels also. I wanted, because this is a journey which every citizen has to undertake. In the entire country, I think the world is facing this problem, because you would not have got economic justice, social justice, any justice, unless you are controlled by the hegemony of the people. You are finding the geopolitical situation today because of the hegemony of the people. It is only because of the business magnates who are trying to control the things, and we are simply a party to this. So to be a natural way, I got associated with Dr. Kumar. Although, of course, I am associated for the last about a year or so, but I got a lot of improvement, not fully got rid of the medicines, although if I am in the process of doing it. But this journey is very interesting. But I find this journey, which is very encouraging. And Dr. Kumar, who is a devoted person, he works day and night, even 7 days in a week. When I call for some problem, and I call him from my Patna, he was in Jabalpur somewhere. He says, you do like this and you'll be alright. So I followed that. So I'm really thankful to Dr. Kumar. In fact, I want to go ahead with this journey. I want all citizens and everybody to be with his journey and to support, so that we should move on a natural path of getting all these allopathic medicines and all these stress. We should really get rid of it, and we should have a natural life. Thank you. Thank you. आज यहाँ पे काफ़ी हमारा मित्र परिवार है। इसमें से सुरेश भार्गव जी भी हमारे मित्र परिवारों से एक हैं, जो कुछ ही दिन में हमसे मिले और एक अच्छी दोस्ती हो गई। और दोस्ती वो कैसे निभा रहे हैं वो अभी आपसे बात करेंगे। सुरेश भार्गव जी, थोड़ा सा आपका अनुभव थोड़ा सा जिक्र करें। आदरणीय रेस्पेक्टेड डॉक्टर एस कुमार जी, हमारे उपस्थित श्रीनिवासी कामेश्वर प्रसाद जी, सभी हॉल में बैठे हुए मेरे गेस्ट मित्र, दोस्तों, माताएं, भाई बहनों, मैं आपको पहले अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम सुरेश भार्गव है। मैं दिल्ली निवासी सिविल लाइन में रहता हूँ। मेरा व्यापार चांदनी चौक खारीवाड़ी में ड्राई फ्रूट का है। मैं लगभग रोज 50-100 लोगों से मिलता हूँ, जिसमें खारीवाड़ी आप सब जानते हैं, दिल्ली में ड्राई फ्रूट, किराना और जड़ी बूटियों की एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। मेरे लगभग 20-25 साल से ये शुगर थी। सिस्टर अमेरिका में रहती है, तो तकरीबन कोई 20-25 साल पहले उन्होंने मेरे पिताजी के लिए एक मशीन भेजी। तो उन्होंने कहा आप भी चेक कराओ। मैंने जब चेक कराई तो मेरी 380 शुगर थी। तो मैं उस वक्त बहुत शौक हुआ। बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर मेरे काफी मित्र, दलाल, ब्रोकर भाई जड़ी बूटी का काम करते हैं। उन्होंने मुझे बताया आप ये लीजिए, ये दवाई लीजिए। काफी टाइम तक मैं इसी चक्कर में रहा। उसके 3-4 साल बाद मेरे को किसी सज्जन ने, मेरे जो कजन भाई हैं वो अपोलो में डॉक्टर है, ऑर्थोपेडिक सर्जन, उन्होंने कहा कि आप
किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, शुगर बहुत एक खतरनाक बीमारी है, इसमें आप रिस्क मत लो। मैंने कई डॉक्टरों को शुगर के इलाज के लिए दिखाया। लास्ट में 4-5 ईयर से मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में, जो एशिया के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, श्री कर्नल सुरेंद्र कुमार जी से इलाज कराया था। तो इलाज कराते वक्त डॉक्टर साहब ने पहले मेरे को काफी दवाइयों पे रखा, लेकिन 2 साल से लगभग मेरे को उन्होंने इंसुलिन पे लिया। जब मैं इंसुलिन पे आ गया तो 2 साल तक मैंने इंसुलिन लगाई, 20 यूनिट में पर डे लगाता था। उसके बाद डॉक्टर साहब के बाद मेरी शुगर जब कम नहीं हुई तो मैं डे टू डे, टाइम टू टाइम उनसे मिलता रहा। डॉक्टर साहब ने कुछ मेरे से टेस्ट कराए। टेस्ट कराने के बाद डॉक्टर साहब बोले कि अब जो है आपको मैं इससे ज़्यादा दवाई नहीं दे सकता, आपको इंसुलिन बढ़ानी पड़ेगी। मैं बहुत शौक था। 1 दिन 2 दिन तक मेरी हालत भी खराब रही, जिसे आप नॉर्मल कह सकते हैं कि दिमाग बहुत परेशान रहा। मैंने कहा तो इंसुलिन का टाइम आ गया है, ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा, आगे मेरी आज 64 साल की उम्र है, आगे कैसे जिंदगी बीतेगी। मैं यूट्यूब पे पलटता था। एक दिन डॉक्टर साहब का मैंने इंटरव्यू देखा तो मैंने कहा कि सारे जब इलाज करा लिए हैं तो एक बार डॉक्टर साहब के लिए जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर साहब एक साइंटिस्ट हैं। मैंने कहा ये एक अलग तरीके का डॉक्टर साहब इलाज करेंगे, जरूर चलना चाहिए। मैं डॉक्टर साहब के पास टाइम लेके आया। डॉक्टर साहब ने कहा कि आप पहले एक टेस्ट कराइए, कुछ स्पेशल टेस्ट थे। मैंने वो टेस्ट कराए, डॉक्टर साहब से मिला। डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको डायबिटीज नहीं है, शुगर जरूर है। तो मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि मैं जानता था कि जो डॉक्टर साहब लिखते हैं यूट्यूब पे कि 90% लोगों को डायबिटीज है ही नहीं हिंदुस्तान में, और वो गलत इलाज करा रहे हैं। मैंने डॉक्टर साहब से 15 दिन की दवाई ली, 15 दिन सप्लीमेंट लिया। 15 दिन के सप्लीमेंट में डॉक्टर साहब ने फर्स्ट टाइम कह दिया कि आप 5 यूनिट अपना इंसुलिन आज से ही कम कर दो। मैंने 15 दिन दवाई खाई और आपको यकीन नहीं होगा, मेरी वो 20 यूनिट जो थी वो 15 दिन में खत्म हो गई। उसके बाद डॉक्टर साहब से मैं फिर मिला। मेरे धीरे धीरे शुगर डाउन होने लगी। जो मैं टैबलेट मॉर्निंग में 3 खाता था और रात को 1 खाता था, वो टैबलेट छुट्टे छुट्टे वो आज सुबह 1.5 हो गई है और शाम को आधी हो गई। मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इस परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ। मेरा वक्त अच्छा था जो डॉक्टर साहब से उन्होंने मुझको मिलाया, और मैं क्या शुक्रिया अदा करूँ और क्या इनके लिए दुआएं करूँ। आप सबसे भी मेरी यही गुजारिश है कि आप जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने आपसे शेयर करा है, उसको ध्यान में रखते हुए आप भी डॉक्टर साहब की तरफ ध्यान करते हुए, और भी जो लोग शुगर के मरीज हैं उनको भी आप कंसल्ट करके डॉक्टर साहब के पास लाइए। ये भला काम होगा देश के लिए, समाज के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। Now I request Mr. Goyal to please join us on stage, please. गोयल सर, आपका गुजारिश है आपसे 2 शब्द बोले इस मौके पे, आपका परिचय देके क्योंकि लोग भी आ रहे हैं आपको। सबको नमस्कार। डॉक्टर एस कुमार, ऑनरेबल गेस्ट, चीफ गेस्ट, मेरे सभी साथियों, बड़े प्रेम से मैं डॉक्टर साहब का पहले धन्यवाद दूंगा कि मुझे इन्होंने यहाँ मौका दिया आपके सामने प्रस्तुत करने का। मेरा अपना कोई एक्सपीरियंस खास नहीं है। मेरी वाइफ के साथ और मेरे लड़के के साथ इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, और डॉक्टर साहब को मेरी वाइफ ने यूट्यूब के थ्रू ही सर्च करके हम लोगों ने कॉन्टेक्ट में आए थे। लेकिन मेरा अपना 4 महीने शायद हो गए हैं ट्रीटमेंट के अंदर में। वो पाँव जो वाइफ का जो घुटने का है उसमें कार्टिलेज नहीं है और चलने में परेशानी हो, डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है। बट माई वाइफ वॉज वेरी डिटरमिन्ड नॉट टू गो फॉर ऑपरेशन। तो ये करने के बाद जब कॉन्टेक्ट में आए तो आज 4-5 महीना है,
50% improvement है. We are not sure what will happen, but we are definitely sure that the operation has been postponed, at least deferred for some time. This is the result after the treatment of Dr. S. Kumar. My son also is undergoing under his treatment for obesity, actually overweight है, थोड़ा सा liver का भी उनका. He came only because of the contact of my wife. So he was visiting. Then we also consulted for him. He is undergoing treatment. Hopefully results are positive. And whatever results are not coming is not because of his Dr. S. Kumar's treatment, because sometimes we feel we ourselves we never find our mistakes and we blame the doctor or we distrust the doctor. My message to the August gathering here is that this should be very carefully considered. What we are doing, it is not only medicine, it is not only visiting doctor, it is our after visiting the doctor daily routine, what we are appropriate diet, as you have rightly suggested. I must appreciate the name and the doctor's dictionary words were very, very mindfully done. So appropriately we use our dieting, I think most of the results should come out. That's my short experience. Now lastly, I am a diabetic patient for last 24 years. And I am seriously thinking, though I am able to control through my exercise and walk, which I told you that you can control without medicines also, keep it regular. My age is about 73. So this is one of the examples everybody can gather, half the things we can do ourselves, but the remaining our doctors can do. And I am thinking to go under his treatment, doctor. I will be your next patient, hopefully, and very confident to get treated nicely. Thank you very much. I have been working, I was an engineer, mechanical engineer from Pantnagar, and then I joined ONGC. ONGC, you must have heard the name. After that, as Destiny, everybody's destiny is next. So I switched over to General Insurance Corporation. Through this, I was very young and I think just got married. So thereafter, I've been following, servicing in the insurance industry. And then I took my VRS because the opening of the insurance sector was there in India. And I took it as a challenge and came to the other side of the table. The broking industry was started. So I am still working. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you so very much to everyone who has shared their experience so far. It's so encouraging. Now, before handing over the mic to Dr. Kumar, let me take you all through a short journey of his experience. So, Dr. S. Kumar, the man from a small town, Tumsar in Gondia district, was raised in various places in Madhya Pradesh by his humble father, a chief engineer in Madhya Pradesh Electricity Board, and mother, who is a well-qualified graduate and a homemaker. After completing his education, he started his professional journey by marketing pharmaceutical products some 35 years back. Later on, he completed his PhD in nutrition biochemistry, forayed into the field of alternative medicines. Courtesy and incidents affecting his father. It was an experience beyond human endurance, which also happened to challenge conventional science wisdom. At that time, his father was diagnosed with osteoarthritis. In a bid to address his ailing father's health challenge, Dr. Kumar sought every possible help from all three branches of medicines, namely allopathy, Ayurveda, and homeopathy. However, these were of no use and could not cure his father's problem. This led to a lot of pondering and brain-racking bouts of restlessness. However, his absolute resolve and tenacity set him on his exploration trail. His painstaking efforts to go deep into the possible causes of his father's illness led him to man's most important need, food. As he went deeper into the research studies, he learned various aspects of diet and nutrition and how existing dietary habits lead us to the horrific traps of various diseases and disorders. From there, he summed up that the root cause of the problem is the food which people consume. This made him spell out the nutritious science
scientific diet as the basis of solution practically to every ailment, and founded Appropriate Diet Therapy Center in 2008. With passage of time, now he has more than 55 centers across India. So let me all welcome you, Dr. S. Kumar. I'm handing over the mic to him. Dr. Kumar, please. Thank you. First of all, thanks to everyone. आज इतना बिजी शेड्यूल में रहने के बाद भी कर्नल साहब ने हमारे चौधरी सर ने सबने समय निकाला और इस छोटे से प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। जो कुछ आप लोगों ने अभी तक मेरे बारे में जो कुछ बोला उसके लिए मैं तहे दिल से आभारी हूँ। प्रश्न फिर वहीं उठ के आता है कि ये गैदरिंग क्यों? आज ये छोटी सी गैदरिंग है। जैसे किसी एक विशाल नदी जब बन जाती है तो उसका उद्गम आप देखेंगे बहुत छोटा सा होता है। चाहे नर्मदा हो या ताप्ती हो या कोई भी नदी हो, तो एक छोटा सा उद्गम है, एक प्रयास है, एक आने वाले भारत के लिए एक नई मिसाल खड़ी करने के लिए। हालांकि हमने सोचा था कि प्रोग्राम बहुत अच्छा रहेगा और अच्छा ही है, लेकिन वक्त के साथ ये ज़रूर बदलेगा। जब मैंने स्टार्ट किया 2008 में, तो मैं एक छोटा सा चैम्बर हुआ करता था नागपुर में 150 स्क्वायर फीट का। और जब नई चीज़ें कोई सुनता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सही क्या और गलत क्या है। और आपको बिलीव नहीं होगा कि मैं एक साल सिर्फ सुबह ऑफिस में जाता था, सुबह 10 बजे और शाम को 8 बजे वापस। नॉट ए सिंगल पेशेंट आई हैड। मैं कुछ अलग बात कर रहा था, सुनने की बड़ा मुश्किल लगता है। अगर रात को सुबह बोले और सुबह को रात बोले तो कौन सुनेगा, लेकिन सच सच होता है, ये मुझे मालूम होता है। और मेरे फादर, आज दिस इज अ ट्रिब्यूट टू माय फादर बेसिकली, आज जो हम यहाँ हैं। माय फादर वाज अ वेरी क्वालिफाइड पर्सन। आज के ज़माने में डिग्रियाँ लेना बहुत इजी है, लेकिन मैं उस चीज़ को नहीं भूलता हूँ जिसका वजूद करके आज मैं हूँ। माय फादर सर डिड द ग्रेजुएशन in 1949. He was a BSc person. That day he got married. The day he got the क्या बोलना चाहिए result, graduation. After that, after marriage, he did the MSc gold medalist from Nagpur, physics. And after that he did the engineering for Indian Institute of Science, Bangalore. Over the period of जब retirement हुआ है, तो he had a problem of osteoarthritis, घुटने का दर्द जो होता है। तो since I was in pharma line, I used to take him to all my friends, the doctors. कोई एलोपैथी था, कोई होम्योपैथी थे, कोई दूसरे पैथी से, लेकिन I found he did not get a single, even a 5% relief from them. And unfortunately in 2000 he died with a cardiac arrest. And that has changed my whole life. मुझे ऐसा लगा कि जिस आदमी ने मेरे को जन्म दिया, इस लायक बनाया, और हमें कुछ नहीं कर पाया उस आदमी के लिए। आज उस आदमी के बारे में सोचिए जो अंधा है, जो देख नहीं सकता है, दुनिया को देख नहीं सकता है। आज उसने इस लायक तो बनाया कि अपन इस लाइन में हैं, सब दुनिया देख रहे हैं, और जिस इंसान ने आपको जन्म दिया उसके लिए आप कुछ भी नहीं कर पाए, डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट। So I started thinking in a very back, and that the day when he died, and my life has changed, and I started finding the solution for that. And it took me almost 8 years to find the solution, since I was a pharma person. So जब हम लोग कई भी नई ड्रग फार्मा में जब लाते हैं तो उससे बहुत बेसिक्स चलता है। किसी भी ड्रग का एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंटरैक्शन और एक्सक्रीशन, ये 4 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जब वो ड्रग आता है तो सारे साइंटिफिक जितने भी रेगुलेशंस पार करके जब नया ड्रग हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, पेटेंट होता है, मार्केट में आता है। द थिंग्स हैज चेंज इन माई लाइफ कि अगर ये चीज़ें ड्रग्स के लिए, तो वाई नॉट द फूड विच वी हैव बीन टेकिंग फॉर ईयर्स टुगेदर। भाई हम पेट के अंदर डाल रहे हैं तो उसका हो क्या रहा है। सो देन वी फाउंड, अगर हड्डियां आपकी कमज़ोर हैं तो आप कैसे ठीक होंगे, मुझे बताइए। सो दैट वॉज ए सिंपल थिंग, वॉज अ मिल्क। दोस्तों, भारत में दूध का महत्व उतना ही है जितना एक ऑक्सीजन का महत्व हो।
सुबह उठते हैं तो हम दूध से शुरुआत करते हैं, शाम को सोते हैं तो दूध से सोते हैं। Milk never gives a calcium. It never prevents the osteoporosis. It causes the osteoporosis. ये हड्डियों से कैल्शियम कम करता है। इतनी जब मुझे लाइन मिली तो मैं बहुत रिसर्च किया, देन आई फाउंड ऑल द रिसर्च, जितने मुझे पब्लिकेशंस मिले इन द वर्ल्ड के, देन आई गॉट इन माय फर्स्ट बुक, गॉट इट पब्लिश इन 2006, नोन एज यस मिल्क अब नो मिल्क, and it was forwarded by Mrs. Maneka Gandhi, because Maneka Gandhi was the only lady in this India on the world. She can say yes, what Dr. Kumar says is right, no other person can say. She has forwarded it, and 2011 it is included in President Library when Pratibha Patil, Mrs. Pratibha Patil was President of India. She has honored me because of that book, and it is included. I have really pleasure and privilege to have my book in the President Library. लोग तो किताब बहुत लिखते हैं लेकिन वहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल है। तो this is what the journey I come into the section. So the food which we take in India is basically is a cultural food, is a emotional food, is a traditional food. But our body works on the science, and we need to have the scientific diet. And most of the time, the dictionary which is written regarding a disease, so anything which is going out of your control in the human body, that is considered as a disease. Here I strictly object. Like I am coming to the original point of diabetes. Diabetes is not a disease. That's one should listen. It's a simple dysfunction of the organ. सिंपल डिस्फंक्शन ऑफ द ऑर्गन्स। अगर हम इंजीनियरिंग लाइन की बात करें अगर तो करेंगे, अगर कोई हमारी मोटर काम नहीं करी या मशीन काम नहीं करी तो हम उसको दुरुस्त करते हैं, मोशन अच्छी चलने लगती है। वैसे ही देयर इज अ कैलकुलेशन ऑफ द मैकेनिज्म इन द ह्यूमन बॉडी। हम वहाँ पे इंजीनियरिंग साइड में बोलेंगे कि मशीन ख़राब हो गई, बराबर काम नहीं कर रही, बट द सेम थिंग हैज़ टू बी कैलकुलेटेड व्हेन वी टॉक ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। वर्ड चेंज हो गए, डिसऑर्डर बोल दिया आपने मेटाबॉलिक, और वहाँ पे बोल दिया हमारी मशीन ख़राब हो गई। तो जब हमारे ऑर्गन्स खराब जाएंगे, खराब होते क्यों हैं? इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। द फूड एज आई सेड कि कल्चरल है, इमोशनल है, ट्रेडिशनल जो हमारा फूड है यहाँ का, बट और बॉडी वर्क्स एट साइंस। और व्हाट साइंस सेज, जिस दिन आप पैदा हुए वहाँ से लेके आज तक आपकी बॉडी अगर साइंस को फॉलो नहीं करेगी तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते। तो दो चीज़ें भगवान ने दी हैं आपको जब आए। तो सबसे पहला बॉडी टेम्परेचर, ध्यान रखिएगा। मैं अभी किसी से ही पूछूं तो व्हाट इज़ द बॉडी टेम्परेचर, मैडम व्हाट इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, क्या होना चाहिए? कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, कोई एग्ज़ाम नहीं चल रही यहाँ पे, इट्स जस्ट अ कैलकुलेशन। मेडिकल वाले तो सभी बता देंगे लेकिन नॉन मेडिकल आप बता पाएंगे? 98.4 फ़ारेनहाइट है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये कॉमन है, सबके बॉडी में कॉमन है, इररिस्पेक्टिव ऑफ। आप किसी देश में चले जाइए जहाँ का टेम्परेचर माइनस चल रहा है, माइनस में चल रहा है, लेकिन बॉडी आपकी रिमेंस 98.4, क्योंकि आपकी बॉडी वर्क कर रही है। अगर एक लोहे का टुकड़ा रख दीजिए वो ठंडा हो जाएगा। सो 98.4 दिस शुड बी कॉमन। अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, देखिए बच्चों का कभी टेम्परेचर बढ़ जाता है मेनिंजाइटिस हो जाता है, इसलिए तुरंत आप बर्फ़ का पानी या पानी की पट्टी रख के उसको नीचे कर देते है ना। तो 98 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इज़ द pH वैल्यू, जो जनरली कोई बात नहीं करता है और ये करना चाहिए जब प्राइमरी, तो प्राइमरी में सिखाना चाहिए। द ब्लड pH कितना होता है? जो होगा वो वाटर का होता है, अपना न्यूट्रल वाटर का जो ब्लड का होता है 7.4 pH। ओके, एज आई सेड कि 90% फूड विच यू टेक इन इंडिया इज एसिडिक। अनफॉर्चुनेटली मिल्क इज एसिड, आई एम नॉट अगेंस्ट द मिल्क। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मिल्क इज द pH। देन शक्कर एसिडिक है, आपका नमक एसिडिक है,
फ्रूट्स एसिडिक है, तो आपकी सिस्टम कैसे काम करेगी? जैसे मैंने बोला कि एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंटरेक्शन एंड एक्सक्रीशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। जब हम दूध लेते हैं हमको लगता है हम दूध ले रहे हैं, लेकिन अंदर जाके कुछ अलग होता है। When the milk enters into the body, it gets converted into sulfuric acid because इस हेड का होता है सिस्टीन और मेथोनाइन टू सल्फर ग्रुप। तो बॉडी में जाने का आपको लग रहा है आप मिल्क ले रहे हैं, लेकिन अंदर जाके जैसे ही बॉडी के अंदर गया उसका सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, और जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड बना आपका बॉडी का पीएच कम होने लगा, बॉडी आपकी कोलैप्स हो जाएगी, क्योंकि बॉडी वर्क्स ऑन द एंजाइम्स एंड बॉडी हैज़ गॉट मोर देन 72,000 एंजाइम्स रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए। दे आर द पीएच सेंसिटिव एंड टेम्परेचर सेंसिटिव। तो टेम्परेचर तो आपका बराबर है, लेकिन पीएच आपका बढ़ गया, तो आपका जो डेरिवेटिव ए मिलना था ए की जगह आपको बी मिला, एंड बी इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट सिस्टम, तो आपका सेलुलर डैमेज होने लगा। तो सेल become a tissue become an organ become a system, and system becomes a body. आपका सेलुलर सिस्टम अगर डैमेज हो गया, आपका सिस्टम खराब हो गया, आपके सिम्टम्स अलग आने आ गए, और आपने बोल दिया इसको डायबिटीज़ हो गया, आपको इसका ब्लड प्रेशर हो गया, इसको कोलेस्ट्रॉल हो गया, इसको कॉन्स्टिपेशन हो गया, इसको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। दिस इज़ द वरी ऑफ इज़ माइंड विच वन शुड अंडरस्टैंड। जो भी ये वीडियो देखेंगे उन्होंने समझना चाहिए कि बॉडी के ऊपर कोई भी एंजाइम के ऊपर बात नहीं कर। 72,000 एंजाइम, उसका सिंपल एग्जांपल एंजाइम क्या है तो लेमैन विल नॉट अंडरस्टैंड, बट आई विल से जैसे आप नोएडा से आ रही हैं तो आपने पहले घर से निकले, व्हीकल में बैठे, यहाँ आए, फिर आपने स्टेयरकेस ली, फिर आपने लिफ्ट, तो जो स्टेयरकेस है दैट्स अ एंजाइम, वो नहीं रहेगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते सिंपल प्रोसेस में। सो कनेक्टिंग जो होता है उसको एंजाइम बोलते हैं, इसमें ए वस्तु बी में चेंज हो जाती है। सो दिस विल वर्क ओनली व्हेन योर बॉडी रिमेन्स 7.4 pH, और तभी होगा जब आप अल्कलाइन फूड खाएंगे। तो जब डायबिटीज़ की बात आती है तो एक वर्ड आता पेंकेटाइटिस। आइटिस इज़ नथिंग बट अ इन्फ्लेमेशन। सूजन अगर आपकी ख़त्म होगी तो आपकी बीमारियाँ वैसी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप कोई भी चीज़ एसिड लगाएंगे तो स्वेलिंग आएगा, वैसे ही अगर आपका कोई भी एसिडिक प्रोडक्ट जाएगा तो आपको दिक्कत होगी और वो आपका ऑर्गन डैमेज होगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो इंसुलिन डायबिटीज़ के बारे में तो लोग इतने अफवाह हैं, इतने अफवाह मैं अभी भी बोल रहा हूँ और बोलता रहूँगा कि भारत तो छोड़िए पूरे विश्व में डायबिटीज़ डू नॉट एग्जिस्ट। It's shocking, but I have got courage to say, because everybody is going on the symptoms. As I explained you, system and symptom. If you go on the system, then only diabetes can be prevented. Yeah, so called. I'm not saying it's called. तो आपकी सिस्टम को ठीक करने के लिए आपने देखना होगा कि हमको क्या करना है। तो जब मैंने रिसर्च किया तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दूँ। एवरीबडी इज़ कंफ्यूज। अगर मैं आपको भी बोलूँगा सर इंसुलिन क्या है, आई एम डाउटफुल वेदर यू कैन टेल मी कि क्या होता है इंसुलिन। वी आर ऑल कंफ्यूज। डॉक्टर के पास गए कंफ्यूज था, इंसुलिन नहीं बन रही है, शुगर बढ़ गई है, बट व्हाट इज इंसुलिन? नोबडी नोज इट। एम आई राइट और रॉन्ग? यस। तो आज आप सीखना चाहेंगे इंसुलिन क्या है, हाँ या ना? Yes, definitely yes. है ना? चलिए मेरे साथ, सीखना भी तो है ना क्या? बस अब आ जाइए, इधर इधर आइए। अब मैं बंद कर रहा हूँ दरवाज़ा। हाँ आइए, अभी दरवाज़ा खोल के आइए आइए आइए। क्या देखा आपने, क्या किया आपने अभी? दरवाजा खोला और इन्होंने खोला क्या? नहीं मैंने खोला। हाँ, आप इंसुलिन है, ये शुगर है। इंसुलिन का काम सिर्फ दरवाजा खोलना है, समझ गए? अगर आपके पास इंसुलिन है तो दरवाजा खोलना चाहिए ना। करेक्ट। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड। इंसुलिन का काम सिर्फ इंसुलिन को रिसेप्टर ओपन करना है, बाकी कोई काम नहीं है। और आपके बॉडी में अगर इंसुलिन है तो फिर डायबिटीज क्यों? वेरी सिंपल। आई एम सेइंग डायबिटीज सिंप्लीफाइड। I am saying redefined definition of the diabetes. अब redefine करो ना, रास्ता नहीं मिल रहा है तो
Always you will find, doctor will always say, diabetes cannot be reversed. Am I right or wrong? Diabetes cannot be cured. Yes, I agree. But diabetes हो तो होगा ना. जब आपको diabetes है ही नहीं, तो फिर क्योर होने का कहाँ सवाल आ रहा है? So it's a simple method. They open the door. और अगर डोर क्लोज है, तो जो मिसेस है आपकी, इज कॉल्ड एज ए शुगर, कीप ऑन पाइलिंग अप. तो शुगर बढ़ गई है जाएगी. तो आपने देखा, तो देखा आपका कि शुगर बढ़ी हुई है फास्टिंग की, दरवाज़ा नहीं खुला, फिर बढ़ गया, फिर पोस्ट मिल हो गई. दोनों का एवरेज होगा HbA1c, तो वो बढ़ा हुआ आएगा. अगर मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ तो डायबिटीज़ रहेगी या ख़त्म होगी? बस. दिस इज व्हाई आई वांट टू, दिस इज व्हाट इज सिंपल, दिस इज व्हाट सिंपल आई वांट टू टेल यू. दरवाजा खोलने वाला भी तो अच्छा मिलना चाहिए. नहीं, दरवाजा तो खोलने वाला आपके साथ है, लेकिन थोड़ा सा नाराज है उसको. आपने बोला कि दरवाजा खोलो, इसलिए मैंने खोला. हाँ, तो वो भी एक तरह, इसलिए तो हमारे जो हमारे सप्लीमेंट्स है वही काम करते हैं. दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो. फाइन, आई एम नॉट सेइंग रिवर्सेबल, आई विल नॉट से रिवर्सेबल, आई एम सेइंग. अब देखिए, डायबिटीज़ में हमेशा डायबिटिक 1 और 2 की चर्चा होती है. तो डायबिटीज़ 1 क्या होता है? जिसमें इंसुलिन नहीं बन रही है. तो अगर दरवाज़ा खोलने वाला है ही नहीं, तो दरवाज़ा खुलेगा कहाँ से? दैट इज़, वहाँ तक तो ठीक था. अगर आप थोड़े से हिस्ट्री में जाए तो 1921 के पहले डायबिटीज़ का एक ही इलाज था, वो था स्टारवेशन. क्योंकि जब पेशाब करते थे तो उसका एक ही था कि वॉशरूम में चले जाइए तो कीड़े मकोड़े लगे रहते थे. वो था, दैट वाज आइडेंटिफिकेशन, टेस्टिंग, कि इसको मधुमेह हुआ है करके कीड़े. तो उसका क्या करते, तो वो पेशेंट्स को खान पान बदल के बिल्कुल स्टारवेशन पे डाल देते थे. वो खाना बिल्कुल बंद कर देते थे. वो तो जब शुगर बनती नहीं थी तो फिर आती नहीं थी. तो एक फेडरिक बैंड करके और मैकलाइट्स करके 2 साइंटिस्ट थे. वो कुछ दिमाग लगा रहे थे, कुछ तो ऐसी चीज़ होना चाहिए कि जो इसके अंदर बनती है लेकिन काम नहीं कर रही है. तो उन्होंने एक डॉग लिया और उसका पैंक्रियास काट दिया, तो उसकी मृत्यु हो गई. और वहाँ से उसके अंदर उसको फिर चूरा किया उसका पैंक्रियास का, और उसको इंजेक्शन बना के पेशेंट को डाला. लेनॉट करके पहला पेशेंट था. तो उसकी शुगर फट से डाउन हो गई. सो हाउ दैट इंसुलिन केम इन 1921-22 एंड दे गॉट द नोबेल प्राइज फॉर दैट. They got a Nobel Prize for that. And Mr. Bent was so genius कि he wanted to save the world. So he sold that patent in only $1. Sir, $1 में पेटेंट बेचा उन्हें. अब उस $1 का क्या हो रहा है आप सोच रहे हैं इस इंडस्ट्री. आई एम नथिंग टू से ऑन दैट, मेरे को उसमें जाना नहीं है बीच में. 1922 से 1949 और 55 के आसपास उसका एक ही इलाज था, इंसुलिन. आप इंसुलिन दो, शुगर कम कर लो. अब डायबिटीज़ 1 और 2 कैसे आई? तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो बहुत सारे जो पेशेंट्स थे जिनको इन्फेक्शन हुआ था, तो दैट टाइम वाज पेनिसिलिन वाज यूज वेरी हाईली, एंटीबायोटिक. एंड सेकेंड ड्रग वाज द सल्फोनामाइड्स. तो पेशेंट को सल्फोनामाइड के टैबलेट दिए, क्यों इन्फेक्शन हुआ था. तो दे फाउंड कि शुगर हैज कम डाउन. The side effects of sulfonamide has created a new drug and came into 1955 around tolbutamide. यानी जो सल्फा ग्रुप के ड्रग आपको सब मालूम है, एलर्जी होती है, तो उसका साइड इफेक्ट्स है. और हाउ इट केम इन डायबिटिक 2. तो डायबिटिक 1 और 2 कैसे करते हैं आप? एक ही होगा ना डायबिटिक. आप तो एक ही रहेंगे या दूसरे भी रहेंगे? एक ही रहेंगे ना. आप जैसे रहेंगे वैसे ही रहेंगे. तो दिस इज़ द व्हाट इंडस्ट्री गोस. हमको इंडस्ट्री के बारे में बात नहीं करना है, हमको हमारे में बात करना है, हमको नॉलेज अपग्रेड करना है. दिस इज़ द एजुकेशनल कंसेप्ट ओनली. पीपल मस्ट अंडरस्टैंड, शुड नॉट फियर कि डायबिटीज़ के कारण हमको ये हो रहा है. हाँ, डायबिटीज़ के जो साइड इफ़ेक्ट्स है, येस, इज़ क्रिएटिंग हवॉक ऑन दैट. एंड इट्स आपको एम्पुटेशन में जा रहा है, किडनी ख़राब हो रही है, ब्रेन ख़राब हो रहा है, ब्लड प्रेशर ख़राब, ये सब चीज़ें एडिशनल चीज़ें हैं. लेकिन डायबिटीज इटसेल्फ इज़ वेरी सेफ. इंसुलिन इज़ वेरी सेफ. जब तक बाहर है उसको एक कंसंट्रेशन में रखना पड़ता है. तो भारत में जब मैं सब चीज़ में चल रहा था तो मैंने देखा कि औसतन जो टेस्ट हो रहे हैं
3 ही टेस्ट होते हैं जो मैं हर वीडियो से बताऊँ और आज भी रिपीट करना चाहूँगा। फास्टिंग शुगर, ठीक है, पोस्ट मील शुगर, और इनके बाद में HbA1c। 3 टेस्ट पूरे भारत में। कुछ स्टेट में जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे HbA1c भी नहीं कराते हैं, सिर्फ फास्टिंग पोस्ट मील। 20 साल 25 साल, जैसे भार्गव सर ने बोला कि देखो हम इतने साल से ले रहे थे, तो आपसे यही टेस्ट कराए ना? कभी किसी ने टेस्ट कराया था? जी नहीं कराया ना। तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में चले जाइए, कोई नहीं कराता है। एक और अश्विन, मिस्टर अश्विन कहाँ है? आइए इधर, आइए इधर, दोनों को, आप दोनों आइए, मिसेस को लेके आइए। एक और चश्मदीद गवाह आपके साथ में है जिनको इंसुलिन चालू थी, आज इंसुलिन बंद हो गई है, सिर्फ टेस्ट के कारण। आप थोड़ा बताएंगे कि क्या हुआ था, कभी ये टेस्ट कराए थे क्या आपने जब हमारे पास आए थे? नहीं, सभी ने कभी नहीं कराए वो टेस्ट, तो कभी कराए नहीं थे। हाँ? हम लगभग 4 इयर्स 5 इयर्स के हो चुके थे लगभग, हम सफ़र कर रहे थे इस प्रॉब्लम से। तो उस दौरान लग ही नहीं रहा था हमें कि ऐसा हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं लग पा रहा था हमें। तो शी इज माई वाइफ एंड 27 ईयर्स ओल्ड। तो डायबिटीज़ जब हो गई, हमें पता ही नहीं था, पहली बात तो हमें पता ही नहीं था डायबिटीज़ होती क्या है। हाँ, लेकिन उस समय जब ये टेस्ट कभी कराए थे क्या? नहीं सर, टेस्ट नहीं कभी कराया। हाँ, और जब आपके टेस्ट नहीं करा, जब हमारे पास टेस्ट लेके आए तो मैंने आपसे क्या कहा, एक सी पेप्टाइड टेस्ट, मैंने कहा ये इतना है, इतना बढ़ना चाहिए तो इनकी इंसुलिन बंद होगी। आज पोजीशन क्या है, इतना मुझे सिर्फ लोगों को बताना है, इंसुलिन बंद हो गई या क्या है? सर पहली बात तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, और एक तरह से इनको दूसरा जन्म मिला है। इंसुलिन इस समय ख़त्म हो गई है, और ये बहुत लाइटली टैबलेट्स पे हैं, बहुत लाइटली, ओनली 5 mg, बहुत लाइटली टैबलेट्स पे हैं, और फील ही नहीं होता है कि हमने कभी ये प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आई थी। और हम बता देते हैं कि हमने तभी से ठान लिया था, जब ये ठीक हो गई थी, हमने ठाना था कि हम मेरठ के रहने वाले हैं। हमने सोचा था कि क्यों ना हम मेरठ को भी डायबिटीज़ फ्री करें। और ये अभी हमसे ज्वाइन किए इन्होंने, वहाँ की फ्रेंचाइजी का काम करते हैं, वहाँ पे अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं मेरठ का हम देख रहे हैं। और हम सर के बताए हुए रास्ते पर और हम अपने प्रयास से और डॉक्टर साहब के प्रयास से लोगों को ठीक करते जा रहे हैं, और सभी ठीक हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं सर। चलो, और ये आपको कुछ बोलना पड़ेगा बेटा? नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं। सो दिस इज, आई वांटेड टू से द टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें 3 टेस्ट और है जो आपने भी कराए हैं। वन इज फास्टिंग सीरम इंसुलिन। जो इंसुलिन का मसला मैंने बताया, अगर इंसुलिन है तो कितनी है ये पहले अपने को टेस्ट करना है। तो नॉर्मली 90% लोगों की इंसुलिन नॉर्मल आती है, जो 2 से 25 की रेंज होती है। हर पेशेंट के शरीर के अंदर इंसुलिन पाई आ रही है। सेकेंड, सी पेप्टाइड। तो सी पेप्टाइड इज अ टेस्ट विच कम्स ओनली विद द इंडोजीनियस इंसुलिन। अगर बॉडी के अंदर इंसुलिन बन रही है तो ही सी पेप्टाइड आएगा, एक्सोजीनियस इंसुलिन से नहीं आएगा। देखिए अभी भगवान ने जैसे थंब रखे, ये कभी किसी का डबल नहीं हो सकता है पूरे वर्ल्ड में। तो ऐसा ही सी पेप्टाइड विल कम ओनली विद द इंडोजीनियस इंसुलिन। अगर बॉडी के अंदर इंसुलिन बन रही है तो ही सी पेप्टाइड आएगा। तो इसकी रेंज होती है 0.8 से 3.75। अगर बॉडी के अंदर सी पेप्टाइड पाई जाती है, इसका मतलब वो पर्सन नॉन डायबिटिक है। नहीं है तो वो डायबिटिक है, उसके लिए आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा, वहाँ पे आपको कोई चॉइस नहीं है। तो ये टेस्ट नहीं होते। तीसरा टेस्ट होता है होमोस्टेसिस फॉर मॉडल असेसमेंट, जो बताता है कि रेजिस्टेंस कितना है, बीटा सेल का कंसंट्रेशन कितना है बनने के बाद। तो उसके अंदर बीटा सेल अगर आपके 50% है, 75% है, सब जगह सब ठीक है, फिर आपको डायबिटीज़ क्यों करा दिया जाता है? इट इज़ ओनली बिकॉज शुगर इज़ नॉट बीइंग यूटिलाइज एट द सेलुलर लेवल। शुगर आपके सेलुलर पे इस्तेमाल नहीं होती, इसलिए बढ़ी हुई आती है, और उसको स्टैम्प हो जाता है कि आपको डायबिटीज़ हो गया है। और जितने पेशेंट से मैं बात करता हूँ, हर पेशेंट से यही बोलता है कि जब उसको इंसुलिन डायग्नोस होती है डायबिटीज़, तो सबकॉन्शियस माइंड में डॉक्टर सबसे पहले ये बोलता है कि आपके घर में किसी को डायबिटीज़ है। तो हाँ ही बोलता है, क्योंकि हर घर में डायबिटीज़ है। वो
प्रिपेयर्ड माइंड से जाता है। सेकंड, उससे पूछा जाता है कि बोला जाता है कि ये आपको अभी ज़िंदगी भर लेना है, वो भी प्रीसिज माइंड होता है। तो बिल्कुल, और उसको जो अगर ऐसे सुनने में आता है कि डायबिटीज डॉक्टर कुमार के अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी जाके तो वो कंसीव नहीं कर पाता, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंसीव। जब ये टेस्ट जो बताते हैं तो एवरी 15 days दे हैव टू कम टू अस विद द रिपोर्ट्स। और जैसे आप लोगों ने किया, सर ने किया, भार्गव जी ने कहा, तो हर 15 दिन के बाद में वो डायबिटीज़ की जो है ख़त्म होते जाती है। और 1 साल में हमारा जो डायबोप्लास्टिक प्रोटोकॉल 369 है उसके अंदर डायबिटीज़, क्योंकि सिस्टम काम करने लगता है, बीटा सेल काम करने लगते हैं, तो वी आर एक्सपर्टाइज इन गिविंग द स्पेसिफिक बायोनाइट्स, antioxidants, catalyst, stress, they work as an insulin sensitizer, and this sensitizer are available throughout the world। ऐसा नहीं कि मैंने रिसर्च किया, मैं भी जो मैं कर सकता था वो मैंने आपको बताया, मैंने सिर्फ आइडेंटिफाई किया है। इज एप्लीकेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, एप्लीकेशन ऑफ द माइंड, पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है, लेकिन उसको किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। ये टेस्ट मैंने इन्वेंट नहीं किए दोस्तों, ये टेस्ट ऑलरेडी मेडिकल बुक्स में है कहीं से उस सारी चीज़, लेकिन कोई एप्लीकेशन तो करे तो आपको सोल्यूशन, अगर सोल्यूशन निकालना है तो सोल्यूशन मिलेगा, अगर नहीं निकालना तो नहीं मिलेगा। इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री का या एप्लीकेशन ऑफ द माइंड। आज से 40-50 साल पहले जब हम ट्रैवलिंग करते थे तो हमारे साथ में एक अभी तो VIPs की सब आ गई, लेकिन एक लोहे का ट्रंक हुआ करता था। जितने भी लोग गांव से इधर आए तो एक ट्रंक कॉमन हुआ करता था, सारी समझ में आता था। और जब लेते थे, जब अगर कैपेबल है तो कुली उठाता था या तो फिर हम घिसते हुए लेके चलते थे। लेकिन आज क्या चेंज हुआ है रेलवे स्टेशन पे, कुली आराम से बैठा रहता है, सब अपने हाथ से बैग लेते रहते। सही बात है ना? क्यों भाई? उस समय उन्होंने, किसी ने एप्लीकेशन ऑफ माइंड किया, उसको हल्का बनाया, व्हील लगा दिए 2 और खींच रहे। तो व्हील तो उस जमाने में भी थे, ट्रंक उस जमाने में भी थी, बट समबडी हैज़ इन्वेंटेड दैट कि इसको लगा देंगे तो ठीक हो जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली आई हैव डन, इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ माइंड, नथिंग एल्स। लोग भले साइंटिस्ट के रूप में हम लोग काम जरूर कर रहे हैं, बट एप्लीकेशन ऑफ माइंड इज़ देयर। सो दोस्तों बहुत सिंपल है, डायबिटीज़ से आप लोगों को घबराना नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग डायबिटीज़ सिंप्लीफाइड, आई एम सेइंग डायबिटीज़ नॉट रिवर्स, आई एम सेइंग रीडिफाइंड, डेफिनेशन रिवाइज किया। अगर हमें किसी रास्ते में ऑब्जेक्शन, हमारे पास में कोई प्रोजेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, और वहाँ तक हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? अगर ट्रैफिक जाम है यहाँ से आने के लिए, तो आप वो रास्ता छोड़ के दूसरे रास्ते से आते हैं ना। सो ऑप्शन इज़ अवेलेबल, लेकिन उसको आप यूज़ करेंगे तो। सो हमने कुछ नहीं किया, हमने एक दूसरा ऑप्शन ढूंढा है कि हम ये रास्ता नहीं, रास्ता बदल के देखें। तो everything is possible provided if you have the intention to do it. So because it's a tribute, again I'm coming back to you, this is my tribute to my father. अगर शायद फादर को ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होता तो शायद मैं इस फील्ड में नहीं आता। आई वाज ऑल्सो कहीं मैं भी दवाइयाँ बना के मैं कंटिन्यू करता होता, लेकिन कहीं चीज़ कहीं ना कहीं आपको माइंड में प्रिक करती है। कभी ऐसा मौका आता है कि आपकी थॉट प्रोसेस चेंज हो जाती है। सो थॉट प्रोसेस चेंज करना है। और आज ये जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, गुजारिश आपसे कि आपकी थॉट प्रोसेस चेंज करें। गो इन द फाउंडेशन, सेलुलर लेवल, वी आर वर्क इन द सेल, बिकॉज सेल बिकम अ टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम एंड बॉडी। तो आपको तो सेलुलर लेवल पे आपके ऑर्गन्स को देखने के डैमेज तो नहीं हो रहे। एलोपैथी इज गुड व्हेन द सर्जरी इज देयर, ऑफ कोर्स देयर इज नो सब्स्टिट्यूट, इन्फेक्शन इज देयर, बट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इन द ह्यूमन बॉडी। एक के कारण दूसरा, दूसरे कारण तीसरा। जैसा एक बिल्डिंग है, अगर इसकी एक ईंट है और ईंट एक ढल जाएगी तो दूसरी ईंट भी गिर जाएगी, तीसरी गिर जाएगी, तो सब ढल जाए। तो हमको एजुकेशनल कंसेप्ट में सेलुलर लेवल के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, एंड वी आर 101% यानी गारंटेड जो हम लोग काम कर रहे हैं। डायबिटीज़ के बारे में ये भी कहा जाता है, जितने लोग ने आपने सुना होगा आज तक, कि बाय 2025 India is going to be diabetic capital of the world. I said no. If a person start thinking the way I am thinking, if the doctors start thinking, the diabetologists keep on thinking, and in another 50 years, diabetes name will be no more in the dictionary. भारत का कोई आदमी
डायबिटीज़ नहीं रहेगा अगर इस चीज़ को आप अगर समझने की कोशिश करें तो एक सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है, एंड नहीं, मैंने तो कुछ आज से 350 से ज़्यादा लेक्चर्स हो चुके हैं। आज बड़ा स्पेसिफिक ना तो छोटा सा था। मैंने रात को 9 बजे चालू किया, सुबह 4 तक लेक्चर चले हैं मेरे, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इसमें इंक्लूड होती है। आज सिर्फ डायबिटीज़ से रिलेटेड था, लेकिन कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा जो सभी को मालूम होंगी, लेकिन जो लोग वीडियो के माध्यम से जानना चाहते हैं उनके लिए 5 चीज़ें हैं कि आपको बॉडी एसिडिक नहीं रखना है। एसिडिक चीज़ें आप बंद करके अल्कलाइन पे जाएं तो मुझे नहीं लगता कि इंसान को कभी तकलीफ़ होगी। व्हाट इज़ द नॉर्मल एज ऑफ अ लाइफ? चलिए आप ही से शुरुआत करते हैं। एक आदमी की औसतन एज कितनी होना चाहिए? Now it is around 80 men and ladies like 75. 75. Yeah. तो what is the normal age होनी चाहिए आदमी की? What God has gifted to us? If they keep fit, I think they can carry you. So how they will keep the fit? That's my question ना. सर कितना होना चाहिए? 100 होनी चाहिए। आप सर? 100. इन्हें 100 की बोली लगाइए, इसके ऊपर कोई हो तो बोलिए। सर अगर आप जैसे डॉक्टर हो तो 100 इयर्स होना चाहिए। हमारे जैसे चलिए, मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे जैसा कोई नहीं मिले तो भी आप 140 साल तक जी सकते हैं। मेरे जैसे नहीं मिले तो भी। इसका कारण है कि गॉड, एक जैसे मैंने PhD बताया, जापान में एक इकोनोवा करके प्लेस है। इकोनोवा, एक पत्रकार, हमारे संजय भाई जैसे पत्रकार गए वहाँ पे इंटरव्यू लेने के लिए, और बोले आप 100 साल के हो गए, इतने हट्टे कट्टे, आपको कुछ नहीं है, आपका इंटरव्यू चाहिए। तो बंदा बड़ा परेशान हो गया। आपको परेशान चाहिए? तो बोले वो सामने जो है ना, उनका इंटरव्यू लेके आओ तब मेरा लेना। मेरा फादर है 125 साल के। सो इट इज़ अ फैक्ट। इकोनोवा इज़ अ प्लेस। नॉर्मल करके जैसे लोग हैं उनकी 120, 130, 35 साल तक की उम्र है। ऐसे एक प्लेस है हुंजा करके पाकिस्तान में। यू विल नेवर फाइंड अ सिंगल पेशेंट इज हैविंग अ कैंसर इन उन्होंने। एक भी आदमी को कैंसर नहीं, कितने सालों का रिकॉर्ड, एक भी, नॉट ए सिंगल पर्सन। देखिए कितनी बड़ी चीज़ है। ऐसे एक एग्जांपल दूंगा। अफ्रीका में एक बंटू तरीके की जमात होती है, बंटू। सो ऑन एन एवरेज उनको 14 बच्चे हैं, 14 बच्चे एक फैमिली में, बट नॉट ए सिंगल लेडी इज ऑस्ट्रोपोरेटिक। दूध नहीं कंज्यूम करते वो लोग, बट दे व्हेन दे माइग्रेटेड टू US, वेरी फर्स्ट बच्चे में ही वो उनको बताया गया दे आर ऑस्ट्रोपोरोसिस। तो यार वाइडली पब्लिश्ड चीज़ें हैं जिसको नेचर के साथ अपने को चलना है। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे जितने लोग हैं, ये जो मैसेज है जाने के लिए कि लोग समझ पाएँ, और बहुत सिंपल है। जितनी भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, इसकी जो शुरुआत हमारे खान पान से होती है, शुरुआत रसोई घर से है, और सलूशन आपके रसोई घर में ही है, बाहर नहीं है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आपकी शुरुआत रसोई घर से है और इसकी जी सलूशन भी आपके रसोई घर में है। मेरे ख्याल से काफ़ी समय हो गया है, बहुत चीज़, और कोई इसमें बात करना चाहेगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि कोई बात करना चाहेगा अभी। और I think if you are very active throughout the day, like अहमदाबाद और गुजरात के देखते हैं, ये भी फार्मा फील्ड से हैं, तो इनका भी अनुभव एक जब से हमसे जुड़े हैं ये कुछ शेयर करना चाहेंगे। Thank you, Dr. Kumar, and respected guest of honor, ladies and my colleagues. See, of course, I have known Dr. Kumar for years, but we came in close contact a few months back. And just now he spoke a lot about diabetes and how it precipitates, how it goes, how any drug assimilates, absorbs, excretes, how we take. And he has done research on that, which I knew earlier. और इन्होंने जो काम किया है अपने जीवन में, I think it is remarkable and we should, it is
Really. Thank you. Thank It's you. an eye-opener for all of us. Yes, sir. And of course, I am handling one small unit of appropriate. But I expect this to grow, and I also expect that this is going to grow not only in India but also abroad, in other places. Yes, I'm sure. Yeah. Thank you. Mr. Rajesh, please come over here. Yes, I would like to introduce to everyone that we are a small family, but yes, everybody is dedicated. Is Mr. Rajesh from Bangalore. He looks after my complete south, and he's an ex-Tata person. He's worked for a number of years in Tata's, and then he joined us around 5-6 years back. So I would like to say something regarding appropriate. Thank you so much, dear friends, all sitting here. I met Dr. Kumar 4 years back. So after meeting Dr. Kumar only, I came to know the seriousness of diabetes. I'm not a technical person, by the way. So I was working in Tata's over a period of time. And then I started my own startup in Bangalore, focusing on logistics and supply chain. And that's where, I met Dr. Kumar. He came down to Bangalore. We had a discussion. And then I thought that, it's a nice cause to be associated with Dr. Kumar. Today, with his blessings, we are taking his funda or his cure of diabetes simplified to the patients in South, supported along with my wife, who is basically active in all these things. I just support her from the back end. And that's it. Sure. Thank you. So much. Thank you. Lastly, I would like to call upon my daughter, Bhagyashri. Please come here. I got 3 daughters. My 2 daughters are in US. They are in the engineering background. They completed their MS, and she's my younger daughter, and she's now become a doctor and joined the appropriate group, and she will be the future of appropriate. She has to take for in future. Speak something to what do you want to say? Hello. Many of us know me, but जिनको नहीं पता मेरे बारे में, myself Dr. Bhagyashri, younger daughter of Dr. Kumar. I have seen him from my childhood that he has worked very hard. Whether it's in anything, he has worked very hard. Like he said, during 2008, he used to go in the morning. He used to come at the 8. He used to be ready to office, office. Then we had some bad phase, and afterwards he never Looked back. Yeah, he never looked back. He was always positive in his ways, his thoughts, and till today also. His age, I think, is 62, and he's still running. And we are very, very proud of him. Very proud of him. With 3 of the daughters, we are very proud of that. Everyone, like you said, when we met you, you are very lucky. Yes, we are very lucky to have such a wonderful person as our dad. We are all very lucky. Yeah. And very supports our full family, appropriate family. Some of us are here. He's a fatherly figure to everyone. Yes. Yeah. The way he supports to everyone. So, I think we'll be ending with our फिर से एक बार सबको दिल से शुक्रिया, आप लोग आए यहाँ पे, इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई, इंटरेक्शन हुआ, थोड़ा सा कुछ शब्द खाने पीने के बारे में किसी में से निकल गए, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा जरूर. I got the twins, Bhakti and Bhavna. She is Bhavna. She has completed MS in US and she is working over there. She is Bhavna. You want to say something? Hello everyone, I'm Bhavna. I'm very proud of my dad. Yes. I'm very proud. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सबके रिजल्ट्स देख के. He said कि तुम आओ देखो, तुम्हें पता चलेगा. मैं वीडियोस भी देखती हूँ, लेकिन आज जब रियल में सबके रिव्यू सुन रही हूँ, सब कुछ देख रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है.
I'm really proud of him. See, meeting after 4 years After to me. 4 years, She came day before yesterday I from only here. see him on videos every time. I watch your channel every time. चल, thank you बेटा, thank you so much. तो चलते हैं समाप्ति की तरफ. उसके पहले एक छोटा सा फैसिलिटेशन करना चाहूँगा हमारे चीफ गेस्ट और इनका अनुज कहाँ पे लगे डॉक्टर एस कुमार, मैं रोशन वैद्य, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी. मैं अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी और डॉक्टर एस कुमार की तरफ से यहाँ उपस्थित सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर हमारे यहाँ इस छोटे से सेशन को अटेंड किया. मैं आपका अप्रोप्रिएट और डॉक्टर एस कुमार की तरफ से फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. और ये भी बता दूं कि अभी रेगुलर ओपीडी सर की शुरू होने वाली है. उससे पहले जाने से पहले सर यहाँ पर मैं चाहूँगा कि आप लोग उसका आनंद ले. तो वो शुरू हो गया है. She wants to say something. She'll end up. इसके अलावा अप्रोप्रिएट राजस्थान टीम, अप्रोप्रिएट मेरठ टीम, अप्रोप्रिएट फरीदाबाद टीम, अप्रोप्रिएट अहमदाबाद टीम और अप्रोप्रिएट बेंगलोर टीम, लखनऊ दिल्ली टीम, लखनऊ टीम, सारी टीम्स का के मेंबर्स का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वो आए. So thank you so very much, each and every one of you. It's so encouraging today. So हमने सभी ने जैसे सुना कि बहुत सारे डिजीज़ हम जानते थे पर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं. ये शायद हम सभी के लिए न्यू कंसेप्ट था. आई एम श्योर आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं एंड दोज हु आर एक्चुअली टेकिंग द ट्रीटमेंट्स, यू आर अवेयर ऑफ दोज थिंग्स. बट फॉर मी, येस, आई एम अ साइंस स्टूडेंट, आई एम मास्टर्स इन साइंस. And I am very well aware of this, and from past few years I'm really thinking of, because in the corporate world life becomes so hectic that you'd never put a thought to your diet, especially like the routines are so hectic and they are being so puzzled of. But the new concept of metabolic disorders is so new to all of us, and thank you so much Dr. Kumar for giving us such a ray of knowledge to this aspect, and hopefully all of us will having and enjoy this knowledge and will improve ourselves and be healthy forever. Thank you so very much. Thank you. So let's go for the tea and breakfast. I forgot to mention Mumbai Center. Mumbai Center is also here. So thank you.